प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 के शेष बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा 7th क्वेश्चन है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल हैं वो क्या है, आर द डायमीटर, सर्कल के डायमीटर के बराबर है। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल, और हमें प्रूव करना है ये एक रेक्टेंगल है यानी कि ये एक आयत है। तो व्हाट वी हैव गिवन ए बी सी डी इज ए साइक्लिक quadrilateral quadrilateral and its diagonal AC and BD are the diameters of the circle. Diameter of the circle क्या प्रूव करना चाहते हैं हम? टू प्रूव quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD is a rectangle। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे? We know that AC and BD are the diameters of the circle. Diameter of the circle. OA is equal to OB is equal to OC is equal to radius of the circle. Radius of the circle. OA is equal to OC, ये हाफ ऑफ AC हो जाएगा क्योंकि AC डायमीटर है। OB is equal to OD, हाफ ऑफ BD, ये भी डायमीटर है। अब ये इक्वल है तो 1 and 2, from 1 and 2 we get AC is equal to BD. So the diagonal of ABCD are equal, and bisect each other, So ABCD is a rectangle. So ABCD is a rectangle. Question number 8. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is a cyclic. कि ये देखिए
ट्रेपेजियम बना हुआ है ABCD, इसमें दो साइड पैरेलल हैं AB और CD और दो साइड नॉन पैरेलल हैं जो कि समानांतर नहीं हैं और वो दोनों लेकिन इक्वल हैं। तो हमें प्रूव करना है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें प्रूव करना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए हम प्रूव करेंगे कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है। तो हम लिखते हैं पहले इसमें गिवन हमें इसमें क्या दिया हुआ है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is not parallel to BC but AD is equal to BC. AD is equal to BC. To prove हमें प्रूव क्या करना है, ABCD is a cyclic trapezium is a cyclic trapezium. कंस्ट्रक्शन, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ DE perpendicular on AB, CF perpendicular on AB. Draw DE perpendicular AB and CF perpendicular AB. Proof क्या रहेगा अब इसका प्रूफ, हमें प्रूव करना है इन ऑर्डर टू प्रूव ABCD is a cyclic trapezium, we will prove angle B plus angle D is equal to 180. Sum of opposite angles is 180. In triangle DEA and triangle CFB we have AD is equal to BC given angle AED is equal to BFC. Angle AED is equal to angle BFC, both 90. DE is equal to CF. DE is equal to CF, distance between parallel lines. Distance between parallel lines is equal. दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होता है। सो ट्रायंगल AED is congruent triangle BFC। किस क्राइटेरिया से, RHS congruency criteria. So by
CPCT, we get angle A is equal to angle B and angle ADE is equal to angle BCF. Angle ADE is equal to angle BCF. Angle ADE is equal to angle BCF, adding 90 degree in both the sides. We get 90 plus angle ADE is equal to 90 plus angle BCF. दोनों तरफ हमने 90 एंगल ऐड कर लिया है। अब ये जो 90 है इसकी जगह हम एंगल EDC लिख देते हैं। EDC प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल FCD प्लस एंगल BCF। ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास एंगल EDC भी 90 है एंड एंगल FCD भी 90। अब इसका और इसका एडिशन हमारे पास एंगल ADC बन जाएगा। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD। ADC is equal to BCD. So this implies angle D is equal to angle C. Thus angle A is equal to angle B. Also angle A plus B plus C plus D is equal to 360. Sum of angles of quadrilateral is क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है। अब यहाँ पे हम A की जगह B लिख देते हैं और C की जगह D लिख देते हैं, तो आई विल गेट एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल D 360, डबल ऑफ एंगल B प्लस डबल ऑफ एंगल D 360, तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 by 2 is equal to 180. So ABCD is a cyclic trapezium. ABCD is a cyclic trapezium. Question number 9. Two circles intersect at 2 points B and C. दो सर्कल हैं जो कि B और C पर एक दूसरे को काट रहे हैं थ्रू B. Two lines segment ABD, PBQ are drawn to intersect the circle at A, D, P and Q. B से होते हुए दो लाइन सेगमेंट ABD, PBQ लगाए गए हैं जो दोनों सर्कल्स को A, D, P और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं. शो दैट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD. ये हमें शो करने हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं. सिंस द एंगल्स इन सेम segment are equal, so angle ACP is equal to angle ABP.
अब देखिए, ये जो हमारी आर्क है, ये इस पॉइंट के साथ एंगल ACP बनाती है और इस पॉइंट के साथ एंगल ABP बनाती है। अगर हम इसको ज्वाइन भी कर देते हैं तो ये कोड बन जाएगी। तो सेम सेगमेंट के एंगल हो गए, दोनों सेम सेगमेंट के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इक्वेशन नंबर हम 2 बनाएंगे। एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBD। ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये कोड बन जाएगी हमारी। तो ये C के साथ QCD बनाती है और B के साथ QBD बनाती है। इट इज इक्वेशन नंबर 2। Also angle ABP is equal to angle QBD angle ABP is equal to angle QBD। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, वर्टिकली opposite angles। It is equation number 3। From 1, 2 and 3 we get, क्या आ जाएगा मेरे पास, एंगल ACP is equal to एंगल QCD। देखिए, ACP किसके बराबर है, ABP के, और ABP किसके बराबर है, QBD के, और QBD किसके बराबर है, QCD। So it is proved। Question number 10। If circles are drawn taking two sides of triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। क्या कहते हैं कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, अगर उसकी 2 साइड्स को हम डायमीटर समझ के 2 सर्कल लगा लेते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड लाइन, जो थर्ड साइड है, उस पर लाई करता है। तो व्हाट वी हैव गिवन, हमें क्या दिया हुआ है इसमें, 2 circles are drawn, 2 circles are drawn with sides AB and AC, AB and AC of a triangle ABC as diameters, the circle intersects at D। These circles intersect each other at D। To prove D point D lies on BC। construction join A and D, A और D को हमने मिला दिया है। प्रूफ, since AB and AC are diameters of the two circles, so angle ADB is
इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90। क्यों? ADB और ADC दोनों 90 के क्यों होंगे? एंगल्स ऑफ द सेमी सर्कल, एंगल्स ऑफ द सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल के अर्धवृत्त में बने हुए कोण 90 के होते हैं। तो हो गया। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। सो वी हैव एंगल ADB प्लस एंगल ADC, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 90 प्लस 90 इट इज 180। सो BDC is a straight line, is a straight line, and hence D lies on BC. 11th question. ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. देखिए ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज इसमें AC है। ADC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 का है और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है, दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूज AC है। प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, CAD is equal to angle CBD. What we have given? We have given triangle ABC and triangle ADC are right angled triangles, right angle triangles with common hypotenuse, AC, common hypotenuse AC. Draw a circle with AC as diameter, with AC as diameter. Draw a circle with AC as diameter passing through B and D. Join BD. So we have angle CAD is equal to angle CBD. Angles in the same segment are equal. Angles in the same segment are equal. अब देखिए, अगर हम इस फिगर को ऐसे देखेंगे तो ये हमारे पास कोड बन जाएगी और ये कोड इसके साथ बी एंगल CBD बना रही है और इसके साथ CAD बना रही है। तो एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, कि अगर कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। तो देखिए इसमें हमें क्या गिवन है?
ABCD is a cyclic parallelogram. पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। टू प्रूव ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Proof: since ABCD is a cyclic parallelogram, cyclic parallelogram, so we have angle A plus angle C is equal to angle B plus angle D is equal to 180। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, इट इज गिवन। सो ए प्लस सी 180 के बराबर है, लेकिन ए और सी इक्वल हैं तो दोनों 90 के हो गए। इसी तरह बी और डी का जो सम है वो 180, लेकिन बी और डी इक्वल हैं तो ये 90 हो गई। सो वी गेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 90, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 90, each angle, this implies each angle of ABCD is 90, and since ABCD is a parallelogram given, so AB is equal to CD, AD is equal to BC. So ABCD is a rectangle. Proved। तो ये थे बच्चों 9.3 के सवाल। कल आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।